प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी का आज इसकी आराधना में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की आराधना हम परमेश्वर यीशु के चरणों पर रखते हैं और इब्रानियों 4 उसके 16 वचन के अनुसार ये विनती करते हैं कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें। अनुग्रह के सिंहासन के पास यह बांध कर चले, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, जहां आवश्यकता के समय परमेश्वर हमारी सुनता है। प्रिय भाई बहनों, आज के इस रविवार की आराधना में आपका स्वागत है। बेशक से हम लोग इस मीडिया के माध्यम से अपने घरों पर हैं और जो भी इस समय वातावरण है, आज अलग अलग समय पर कलीसिया आज का वचन लोगों के घर में इस माध्यम के साथ पहुंचाती है। आज फिर मैं इस रविवार के दिन, प्रभु के जी उठने के दिन आपके साथ आराधना करना चाहता हूं। आज हम प्रभु की आराधना करेंगे, यीशु मसीह की आराधना करेंगे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो बीमार हैं। प्रिय भाई बहनों, आज मेरे पास बहुत से ऐसे प्रार्थना के विषय आए हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी, जो बीमार हैं। कुछ लोग के परिवार में उनके प्रियजन दुनिया से चले गए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये आज की आराधना एक ऐसी आराधना है कि हम इसके दिन हम सब मिलके आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर अपने यीशु की आराधना स्तुति कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर आत्मा है और भविष्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। प्रिय भाई बहनों, आइए इससे पहले कि हम आज की आराधना में जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करेंगे और प्रभु यीशु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारी सहायता कर कि आज की आराधना तेरी महिमा के लिए हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। मांगो तो तुमको वो देवेगा, ढूंढो तो तुमको वो मिलेगा, खटखटाओ तो वो खोलेगा, प्रतिज्ञाओं पर करो विश्वास। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। मेरे यीशु मसीह, हमारे यीशु मसीह, सब विश्वासियों के यीशु मसीह, आज हम आपकी आराधना स्तुति करना चाहते हैं। हम पिछले पूरे हफ्ते के लिए आपने जो हमें आशीष दी है, so many blessings Lord you have given to us, physically, mentally and financially and especially spiritually. So many blessings you have given to us, Lord Jesus. Right now today we come to thy holy presence. We all your children come to thy holy presence, Lord Jesus. We need you, Lord Jesus. We need Holy Spirit. In those days when we are facing so many problems, Lord, the whole world is facing problem, Lord Jesus. This time we need you. We need you, Lord Jesus. We need Holy Spirit. We need your guidance. We need the power, because we have to face so many problems. Physically problem people are facing, Lord. They are in fear, Lord. But your word said, fear not. When you risen from the death, Lord Jesus, very first you appear before the disciples, they were in fear. They were hiding in the room, Lord Jesus. That room was closed. But you came into this room, and it's your first word. Fear not. Lord Jesus, this time I pray, the word you have given to me, Lord, which I have to serve, which I have to deliver to my people, Lord Jesus. They are waiting. Lord, I pray this morning on your resurrection day, Lord, I pray, help us and guide us and lead us into the right way, because Jesus, you are the way. You are the way of truth. Lord, help us, Lord Jesus.
Touch my mouth, Lord Jesus. Fill with your Holy Spirit, Lord Jesus. Because your word, I don't have this mind, I don't have this wisdom to preach the gospel. But Lord Jesus, Holy Spirit, touch my mouth, Lord Jesus. Touch my mouth with your fire, Lord. And this time, Lord, I commit my all brothers and sisters and children, our youth, Lord, and old people, Lord. Those will come together with me in this fellowship. Help us. And Lord, open their mind, open their heart. Today they may receive your word. How to receive the blessing in 2021. Lord, bless them. Today is Holy Communion in churches, Lord. Lord Jesus, some churches have first Sunday and some churches have every Sunday. But Lord Jesus, you bless on this table, Lord. When they will take this bread, they may remember your body. When they take this cup, Lord, they may remember your blood that was shed from the cross for me, for the people, for the church, Lord Jesus. Help us and guide us, Lord Jesus. Lord Jesus, this time I pray when I worship you, Lord. I want to worship you with all my might, all my heart, and all my might into the guidance of the Holy Spirit. Lord, bless my brothers and sisters. Bless my all friends of Facebook, YouTube, and WhatsApp. Bless them. Let their heart may receive this word. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' precious name we pray. Amen. 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 प्रिय भाई बहनों, आज का दिन जो आज प्रभु की आराधना का दिन है, हम आराधना करेंगे, बस इतना ही करेंगे कि हम हमारे प्रिय भाई लोग, बहन लोग समय निकाल करके इस वचन को सुन सके। आइए तो हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं। ना तो बल से ना शक्ति से तेरे आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। न तो बल से न शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा यीशु हमारा कितना महान, हक हो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। न तो बल से न शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना,
मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। जीसस, थैंक यू जीसस। हम मिट्टी है प्रभु यीशु, इस मिट्टी को उठा ले। जितने लोग मेरे साथ इस आराधना में जुड़ रहे हैं पिता यीशु, वो मिट्टी है, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है तू मिट्टी से बनाया गया है, पर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जब जिस्म से जान निकलती है, तब मिट्टी रह जाती है। कल किसने किसको देखा है, बस याद ही रह जाती है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। अपनी मर्जी में चलता रहा, थैंक यू जीसस। तुझको कभी भी अपना ना कहा। आज समय है, अब तक आप अपनी मर्जी से चले हैं, इस मिट्टी के बर्तन को ना जाने कहाँ का लेके गए हैं। आज प्रभु यीशु मसीह कहना चाहता है, क्या आप अपनी मर्जी से नहीं, प्रभु की इच्छा में चलिए। नीति वचन 3 में लिखा है, तो अपनी समझ का सारा मत ले, अपनी मर्जी में चलता रहा। तुझको कभी भी अपना ना कहा, लेकिन यीशु, यीशु बोलिए, लेकिन यीशु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ, ले लेती हूँ, ले लेता हूँ। लेकिन यीशु आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये मिट्टी का जीवन यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। कल का भरोसा किसी को नहीं है, कल क्या हो। आपको प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन और दिखाया है, और आज के दिन अपने जीवन को यीशु से कहिए, लेकिन प्रभु यीशु आज से मैं अपने आप से इनकार करके, अपने पापों को मानकर अपने क्रूस को ले लेती हूँ, ले लेता हूँ। लेकिन यीशु आज से मैं, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, तेरे क्रूस के पीछे हम सब आए पिता। जितने भाई बहन मेरे साथ आराधना में है, उनके हृदय को छेद दे प्रभु यीशु मसीह। तेरे पवित्र आत्मा काम करे, लोगों से बात कर। हमने बहुत साल अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा में चला है, लेकिन यीशु आज हम अपनी इच्छा से नहीं, तेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि तूने प्रार्थना में सिखाया है, जब तुम प्रार्थना करो कर जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है, इस जमीन पर पूरी होती है। लेकिन आज हम प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना करते हैं, प्रिय भाई बहन, क्या आप आज से कहेंगे कि यीशु जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे जीवन में पूरी हो। कमिट टू माय लाइफ लॉर्ड जी, कमिट टू माय लाइफ। मैं पापी संसार में लिखा रह रहा हूँ। ये शायर ने जब तेरी पवित्रता को देखा तो चिल्ला उठा कि अब तक मुझे नहीं पता था कि मैं पापी मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, अशुद्ध होने वाले बीच में रहता हूँ। हर घंटे हर पल मेरे होठ से, मेरे मुंह से शाप निकलता है, गालियां निकलती है।
फौरन निकलता है। मैं अपने इच्छा से चल रहा था। प्रार्थना कीजिए कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण हो, और आप वो आशीष को, जिस आशीष को पाने के लिए संसार में भटक रहे हैं, वो भटकना छूट जाए। लेकिन प्रभु यीशु, आज से मैं अपने क्रूस को ले लेता हूँ। जीसस, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। आप भी चाहते हैं और मैं भी चाहता हूँ, हम मिट्टी के बर्तन हैं। क्या आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह की इच्छा को पूरी कर सके? तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, अपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, फिर भी होली स्पिरिट, वो सामर्थ, ताकि मैं सारी बातों का सामना कर सकूं। और गाइए, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो आज की इस आराधना के लिए, आज की इस सारी संगति के लिए, कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम उसकी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। प्रिय भाइयों बहनों, आज का दिन बहुत पवित्र है। परमेश्वर ने, हमारे यीशु मसीह ने एक समय आपको और मुझको और दिया है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। जो कुछ भी आराधना किए, प्रभु ने उसको ग्रहण किया है। ये पहाड़, आप जानते हो, आज बहुत से लोग परेशान हैं बीमारी से। मेरे देश भारत में बीमारी का मतलब है कंगाल होना। लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के ऊपर कर्जे हैं, लोग आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। उन्हें एक पहाड़ दिखाई देता है। यीशु के पास आइए और कहिए, ये पहाड़ यीशु तू ही हटा सकता है। मैं तो अपने उद्धारकर्ता के लिए कहूंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर, उस पहाड़ की तरफ, उस चट्टान की तरफ मेरा यीशु लगाऊंगा, मुझे वहां से सहायता मिलेगी। प्रिय भाई बहनों, कितने आनंद की बात है। पूरे 6 दिन हम कितने बिजी रहते हैं अपने कामों में, अपनी सारी बातों में, कोई समय नहीं मिलता। लेकिन प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको और आज मुझको ये समय दिया है कि हम आज उसके वचन को, जो उसने हमें दिया है, पढ़ें, आशीष लें। इससे पहले कि हम प्रभु यीशु के वचन को सुनेंगे, जीवित वचन को सुनेंगे, मैं बाइबल का वो वचन जो हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और हमारा जो सीरियल चल रहा है, आज 3rd पार्ट है, आखिरी भाग है। और आपको जानते हैं, जो स्क्रिप्चर रीडिंग था, बाइबल पाठ था हमारा, वो इब्रानियों 10:25 पे था। यह हमारे रवि संडे का जो तीसरा संडे है, इस पर हमारा वचन चल रहा था। और बाइबल में लिखा है, हिब्रू 10:25, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसा कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और जो जो उस दिन को निकट आते देखते हो, त्यों तो और भी अधिक क्या करो। Hebrew 10:25, let us not ignore meeting together as more have made a habit, but let encourage one another, and all the more as you see the day of approaching. कितनी सुंदर बात है। प्रिय भाई बहन, इन सारी बातों को, इस वचन को आपने पिछले 2 भाग में देखा है, और हमारा विषय जो है वो है हाउ टू रिसीव ब्लेसिंग इन 2021, कि हम इस 2021 में कैसे आशीष प्राप्त करें।
ये वचन परमेश्वर ने मुझे बहुत अद्भुत रीति से दिया। 12 तारीख को मैंने अपलोड किया था और उसके बाद 11 तारीख को मेरे पास बहुत से फोन आए थे। बहुत से मेरे प्रियजन, मेरे फ्रेंड जो विश्वास करते हैं प्रार्थनाओं पर, जो तकलीफों में थे, उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था, रिकॉर्ड करके भेजा था। कुछ लोगों ने रो रो के लिखा था, हमारे बच्चों के लिए खाने को नहीं है, बहुत मुसीबत में हैं। कुछ ऐसे पास्टर सेवकों ने लिखा जो दूर दराज गांव में काम कर रहे हैं, जिनको कोई सहयोग नहीं करता, और तब उनको एनकरेज करने के लिए ये वचन दिया था। उसका पहला पाठ, दूसरा पाठ आपने सुना होगा, नहीं किया तो आप उसको जरूर सुनिए, जरूर देखिए, जरूर पढ़िए। इसके द्वारा प्रभु आपको आशीष देगा। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले कि जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पहाड़ को कैसे हटा सकते हैं, तो आज हम इस पहाड़ को हटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये गीत गाना चाहता हूं मैं। आज से बहुत साल पहले ये गीत मैंने लिखा था। इसका एक ही अंतरा गाना गाऊंगा, ताकि वो अंतरा जब गाता हूं, उस टाइम जब when I am singing, that should be stuck in your mind, that penetrate our heart। कि जब वचन सुने, ये पुराने में लिखा है 3 अध्याय में, कि जब तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो तो अपने मनों का कठोर मत करना। थैंक यू लॉर्ड। लेकर सब बोझ गुनाहों का, आपको पता है हमारे पाप, हमारे गुनाह हमारी प्रार्थना में रुकावट बनते हैं। लेकर सब बोझ गुनाहों का आ जाओ यीशु के कदमों में। यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है। जब वचन सुनो यीशु का तुम, तो अपने को तैयार करो। दिल सख्त नहीं अपने करना, फिर वक्त नहीं मिल पाएगा। जब वचन सुनो यीशु का तुम, मैं दोबारा से गा रहा हूं, ध्यान दीजिए, प्रार्थना के साथ अपने आप को वचन के लिए तैयार कीजिए। जब वचन सुनो यीशु का तुम, तो अपने को तैयार करो। दिल सख्त नहीं अपने करना, फिर वक्त नहीं मिल पाएगा। ये समय है उसके अनुग्रह का, तू अपना क्रोस उठा कर आ। यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है। यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है। धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है, क्या आज आप तैयार हो गए हैं? तो इससे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को वचन के लिए तैयार करेंगे। और मेरे पास बहुत से प्रार्थना रिक्वेस्ट आई है, अभी सुबह भी आई है। मेरी मिसेस के कोई अंकल हैं, वो बीमार हैं अहमदाबाद में, और बहुत से अलग अलग स्थानों से मेरे पास विषय आए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि हमारे आर्थिक संकट से उबरने के लिए हमारी सहायता कीजिए। एक भाई को बहुत ही ऊपर कर्जा आ गया, गलती से किसी ने क्या कर दिया, उसने भी उसके लिए प्रार्थना कहा है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे आज की आराधना के लिए, चर्चेस के लिए, पास्टर्स के लिए जो आज का वचन दे रहे हैं। जगह जगह सारी आराधना हो रही है, आज के समय ऑनलाइन है। आप जो भी वचन देख रहे हैं, जिस पास्टर को सुन रहे हैं, इस रूप से सुनिए कि प्रभु यीशु आपसे बात कर रहा है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके बच्चे आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो बीमार हैं
आज अहमदाबाद से सुबह हमारे पास एक विषय आया है। हमारी मिसेस के कुछ अंकल हैं जो बीमार हैं, उनको आप चंगाई दीजिए पिता यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ लॉर्ड जीसस, यू रेज योर हैंड, टच एंड सेट योर power, Lord Jesus. You are a consuming fire, as the Bible says, Hebrew 12:29. You are a consuming fire. You can consume all kind of sickness, Lord. This corona, the people, those are facing the corona, this facing from this pneumonia, Lord, send your fire, Lord Jesus, and consume all kinds of sickness. Those have varicose problem, those have different kind of problem, diabetes, heart problem, Lord Jesus, I pray you are the only God who can heal the people. ओ प्रभु यीशु मसीह तेरे पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरे सेवकों के लिए, पास्टर्स के लिए, एवेंजलिस्ट के लिए, और जो दूर दूर दराज गांव में प्रभु आइसोलेटेड स्थान में प्रभु तेरी सेवा कर रहे हैं, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, वो बहुत तकलीफों में है प्रभु यीशु मसीह। उनके बच्चों के पास अच्छे से मेडिसिन का पैसा नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रभु अच्छे स्कूल नहीं है। यीशु जिनके पास है उनको उभारिए कि वो उनकी हेल्प कर सके। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना है जितने लोग बीमार हैं, जिनके नाम मेरे पास आए हैं, आप उनको छू लीजिए। एक बहन का जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, एक भाई जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, ओ यीशु मसीह तूने इस हृदय को बनाया है, तेरे वचन में लिखा है, ओ यीशु मसीह, ये 36, 26, 27 में लिखा है, आई विल गिव यू न्यू हार्ट, आई विल पुट माई स्पिरिट, लॉर्ड जीसस। तू अपना हार्ट, उनका नया हृदय दे दे यीशु मसीह। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, उनकी बीमारियां उनके शरीर से जाती रहे, जिनको प्रभु थायराइड का प्रॉब्लम है, जिनके प्रभु शरीर बहुत मोटे हो चुके हैं अलग अलग बीमारी के कारण, दवाइयों के कारण, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं उनकी बीमारी उनके शरीर से निकल जाए। मेरे भाई मेरी बहन, आप जब इस संदेश को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हैव फेथ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर माई लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जरमया 36, 26, 27 में, आई एम द गॉड ऑफ ऑल फ्लेश, इज देयर एनीथिंग हार्ड फॉर मी। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई कठिन है? मेरे भाई मेरी बहन, आप जो बीमार है, मैं किसी बीमारी का नाम नहीं लूंगा, आपको जो बीमारी है यीशु मसीह के नाम से इसी समय अपनी चंगाई को ले लीजिए। हम इस बीमारी को कर्स करते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि हे मेरे मन, तू देवा को धन्य के, क्योंकि वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है और तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मानिए कि पवित्र आत्मा आपको पास है, आपके बिल्कुल नजदीक में है। यशायाह 43 उसके 13 में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं, क्या जब मैं काम करना चाहूं तो कोई रोक सकता है? नो वन कैन स्टॉप द वर्क ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही इज इन एक्शन। वो आज भी काम कर रहा है। प्रभु यीशु के नाम से जितने हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और जो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, और हमारे ईमेल में, और हमारे जितने भी यूट्यूब पे हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमें जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन यीशु तू उनको जानता है। मेरे बचपन के फ्रेंड्स जितने भी हैं, जिनके साथ मेरा अभी नया संबंध हुआ है, यीशु उनको आशीष दें, वो तेरे को पहचान सके, वो सत्य को जान सके, क्योंकि लॉर्ड जीसस, यू आर द ट्रूथ and this is your word from your mouth. When you know the truth, and truth will set you free. हालेलुया। सबको आजाद कर, जैसे तूने मुझे आजाद किया है, जैसे बहुत से लोग को आजाद किया है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु में आपसे प्रार्थना है, यीशु से अपनी चंगाई को, अपनी आशीष को ले लीजिए। इस समय हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिनके ऊपर कर्जा है, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह, पिछले दिनों हमने वचन सुना था कि किस प्रकार से आपने एलिया के लिए प्रबंध किया कि कौवे उसको खाना खिलाएंगे, एक विधवा उसको खाना खिलाएंगे। तूने अब्राहम के लिए 22 अध्याय उत्पत्ति में प्रबंध किया और एक नाम दिया। आज यावे येरे वचन को, यावे ये नाम को इन समस्त भाई और बहनों के लिए जिनको बहुत समस्या है, आर्थिक समस्या है, यीशु के नाम से क्लेम करता हूं, उनकी सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाए। डोर विच इज क्लोज, नॉट लॉक्ड, just you push, come into in the presence of Jesus Christ and pray and
पुश द डोर दैट विल ओपन। वो दरवाजा जो बंद है उसमें ताला नहीं लगा हुआ, प्रार्थना के द्वारा उसको धक्का मारिए। When you pray, you are knocking the door of Jesus Christ. He is ready to listen your prayer. हालेलुया, धन्यवाद। अब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। प्रभु यीशु, अपने वचन को बोलने में, समझाने में मेरी सहायता करना। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करना। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु ने आपसे बात की है। और ये जो वचन आज हम सुनने वाले हैं, आज का जो विषय मैंने पहले भी आपको बताया था कि आज का विषय है हाउ टू रिसीव द ब्लेसिंग इन 2021। तो हमने जो पहला पार्ट देखा था, वचन तो वही है, हिब्रू 10:25। तो उसका पहला पार्ट था, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, ठीक है, नॉट टू गिव अप मीटिंग टुगेदर इन प्रेयर। ये प्रार्थना के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करिए, बहुत सुंदर वचन है। और दूसरा हमने इसका देखा था, जैसा कितनों की रीति है पर एक दूसरे को समझाते रहो। और इंग्लिश में एस सम आर इन द हैबिट ऑफ डूइंग बट एनकरेज वन अनदर। हमने इन सब का अर्थ अच्छे से सुना था और जाना था। आज हमारा तीसरा पार्ट है। इस थर्ड पार्ट को हम सुनते हैं और देखते हैं और अपने जीवन में लेते हैं। क्या तीसरे वचन के द्वारा, तीसरा जो पार्ट है इस वचन का, हिब्रू 10:25 का तो थर्ड पार्ट है, ये आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, आपसे परमेश्वर वचन कुछ कहना चाहता है। और वो तीसरे वचन का जो पार्ट थर्ड है वो कहता है, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों तो और अधिक क्या करो, एंड ऑल द मोर एज यू सी द डे ऑफ अप्रोचिंग। सबसे पहले में द डे ऑफ अप्रोचिंग यहां कहा जाता है, जो जो उस दिन को आते देखो और करो। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा में हमसे किस दिन के लिए कहना चाहता है। पहली चीज तो ये है, ठीक है। अब जो है द डे अप्रोचिंग, अब इसका अर्थ क्या है। इसका जब डिक्शनरी में जाएंगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा है, द डे ऑफ अप्रोचिंग का मतलब है समीप आना, यानी आने वाला है। आज जिसके मुंह से देखो वही कहता है जीसस इज कमिंग सून। अरे जीसस इज कमिंग सून तो होगा क्या, होगा क्या। आपको एक बात और बताना चाहते हैं, मत बोलना कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूं। कभी कभी नेगेटिव बाई हमें सुधार देती है। जैसे मैं आपको एक डॉक्टर का बताता हूं नियम। एक डॉक्टर होता है, अगर वो किसी का ऑपरेशन करेगा, कहेगा कि मैं काटूंगा तो दर्द होगा, ठीक है, या किसी जख्म को कहेगा मैं ज्यादा साफ करूंगा तो दर्द होगा, और वो ऊपर ही ऊपर उसको करेगा तो वो क्या रोग ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से डॉक्टर कभी कभी हमारे को कहता थोड़ा सा दर्द होगा, सह लेना, और वो जख्म को अच्छे से साफ करके जब पट्टी बांधता है वो ठीक हो जाता है। तो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे यिर्मयाह ने अपनी पुस्तक में इस्राएलियों को बहुत कुछ कहा था। प्रिय भाई बहनों, यहां पे परमेश्वर का वचन आपसे कहता है निकट पहुंचना, अप्रोचिंग मतलब समीप आ जाना। और प्रिय भाई बहन, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है हाकिम द्वार पर खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह जो जज है वो हमारे द्वार पर खड़ा है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे जो वचन आपको बताने वाला हूं कि जो जो उस दिन को निकट आके देखो तो और क्या करो, अप्रोचिंग द डे इज कमिंग वेरी सून। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा। आगे आपकी मर्जी है, आप पढ़ें या ना पढ़ें। पढ़ेंगे तो आशीष मिलेगी, नहीं पढ़ेगी तो नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इस वचन को पढ़ने के लिए मैं आपके साथ चाहूंगा कि अपनी बाइबल में निशान लगाना है इस वचन को। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 उसका वर्स 9 में लिखा है, हे भाइयों एक दूसरे पर दोष मत लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो हाकिम द्वार पर खड़ा है। अब हिंदी में इस प्रकार से जब मैं इंग्लिश का वर्जन देख रहा था, NIV जो है, तो वहां लिखा है जेम्स 5:9 वर्स, बहुत अच्छा इसमें गहरा अर्थ बताया गया। कहता है डोंट ग्रम्बल अगेंस्ट वन अनदर ब्रदर्स एंड सिस्टर, और यू विल बी जज्ड
द जज इज स्टैंडिंग एट द डोर। आपको पता है, जब हम बातें करते हैं, बुराई करते हैं, झगड़ा करते हैं, आज मैं बहुत से लोगों के विषय में विचार कर रहा था, जब प्रार्थना कर रहा था, तो मैंने बहुत से लोगों के बारे में विचार किया जो कहते हैं हमने बपतिस्मा पाया है, हमने विश्वास किया है, लेकिन उनके जीवन में वही क्रोध है, वही लड़ाई झगड़ा है, मुंह से गालियां बकना, बाइबल पे पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, होली कम्युनियन भी लेते हैं, लेकिन जब अगर उनको कोई कुछ कह देता है तो फिर वो आपस से बाहर हो जाते हैं। बाइबल क्या कहते हैं? डू नॉट ग्रम्बल अगेंस्ट वन अनदर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर और यू विल बी जज। द जज यानी न्याय स्टैंडिंग एट द डोर, हमारी सारी बात सुन रहा है। आपको अगर अवसर मिले तो भजन उसका 11:4 पढ़ना, कहना कि हमारा परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है, अपने स्वर्गीय सिंहासन पर है, और लिखा है कि उसकी पलकें नित्य इंसान को देखती भालती हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है प्रिय भाई बहनों, आपका मुंह से निकलने वाला एक एक वचन, आपकी एक एक बात परमेश्वर के वहां रिकॉर्ड हो रही है। आप कहेंगे परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है क्या? यस, रिकॉर्ड है। कैसे? आप पढ़िए मलाकी 3:16, वहां लिखा है कि जब परमेश्वर के भय मानने वालों, जब सब लोग डरते हैं परमेश्वर से, सब डरते हैं, लेकिन समय आने पर वो सब कुछ भूल जाते हैं। लड़ाई झगड़ा मार पीट, एकदम से लाठियां उठा लेते हैं एक दूसरे को। आज क्या हो रहा है? भाई भाई का दुश्मन है, जाति पे जाति ले मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। ये किसके काम है? वो दुष्ट के काम है। प्रकाशित वाक्य 12:12 में लिखा है कि वो दुष्ट इस पृथ्वी पर उतारा है क्योंकि जानता उसका समय कम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस न्याय के दिन के लिए आपको और मुझको तैयार होना है। मत कहिए जीसस इज कमिंग सून, वो तो आएगा, वो तो आएगा, आने वाला है। तो प्रिय भाई बहनों, हमने इस वचन में दो बातें पहले देख ली थी कि किस प्रकार से परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, वो आशीष जो संसार नहीं दे सकता। हाउ टू रिसीव ब्लेसिंग इन 2021, इस 2021 में कैसे आशीष को प्राप्त करें, हम पहले सारी बातें देख चुके हैं। अगर आपको समय मिले तो प्रिय भाई बहनों, पहला और दूसरा भाग जरूर देखा, और मैं फेसबुक पर इसी को दोबारा 1 2 3 कंटिन्यू इसको फिर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप कंटिन्यू देख सकते हैं, ताकि उस आशीष को जो प्रभु यीशु मसीह आज आपको देना चाहते हैं 3 पार्ट्स के द्वारा, उसको आप अपने जीवन में ले सकें। तो प्रिय भाई बहनों, हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए हमें तैयार होना है। तो हम कैसे तैयार हो? लिखा बाइबल में लिखा है, कहता है तैयार करता है प्रभु हमें सारी बातों के द्वारा। इसके लिए हम सब सेवकों को बहुत जरूरी है। देखिए, हम सब सेवक लोग कहते हैं जीसस इज कमिंग सून, लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो होगा क्या? प्रिय भाई, जो मैं बात कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु आपको कुछ कह रहा है। यहां पे लिखा है, प्रभु कहना चाहता है कि जो हमने थर्ड पार्ट है, पहला दूसरा तीसरा, इस सारी बातों के लिए हमें इन तीनों आत्मिक जीवन के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार करता है। ये सारी बातें हमें परमेश्वर अपने न्याय के लिए तैयार करना है, हमें न्याय के लिए तैयार होना है, और इसके लिए हम सब सेवकों के साथ साथ हमारे परिवार के लोगों को इस बात को गंभीरता से समझना पड़ेगा, और हम सबको यीशु के न्याय के लिए तैयार होना पड़ेगा। मेरे को तो कभी कभी डर लगता है प्रिय भाई बहनों, कि जो आने वाली जनरेशन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको बाइबल के जगह उनका हाथों में ये क्या बोलते हैं उसको, सेल फोन दे दिया है, क्या होगा उनका? सोचिए, आज जवानों के हाथ से बाइबल जा चुकी है, वो केवल सेल फोन लेते हैं, चर्च में जाते हैं तो पीछे बैठ करके सेल फोन पे कुछ बात करते हैं, प्रभु का सेवा बात करता है। प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, आपकी सारी बातों को टाइप कर रहा है। न्याय के दिन किताब खुल जाएगी, और परमेश्वर चाहता है कि आप इन सारी बातों को समझे। खुल जाएंगे किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगे किताबें। सबके नाम की एक पुस्तक है, न्याय के दिन खड़े होना है। अब हम सब सेवकों की बहुत जिम्मेवारी है कि सारी बातों को छोड़ करके अपने बाहरी
आवरण को निकाल करके अंदर से अपने को शुद्ध करें, अंदर से अपने आप को तैयार करें, ताकि लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह को देख सकें। प्रेरित 4 में लिखा है कि यूहन्ना का और पतरस का हियाव देख करके लोग पहचान गए कि यीशु के साथ रहे हैं। वर्ड शुड बी इनसाइड एंड वर्ल्ड शुड बी आउटसाइड। जो मैंने कहा है, कहां तक समझे? यानी वर्ड मीन्स यीशु मसीह हमारे अंदर होना चाहिए और संसार जो अंदर घुस चुका है वो बाहर होना चाहिए। प्रिय भाई बहनों, बहुत जरूरी है कि हमें प्रभु के न्याय के दिन के लिए तैयार होना है। अगर तैयार नहीं हुए तो क्या होगा? अब ये क्वेश्चन आपके साथ है। इफ वी आर नॉट रेडी फॉर द डे ऑफ जजमेंट, फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, व्हेन वी विल स्टैंड बिफोर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं है तो आप जानते हैं बाइबल क्या कहती है। हम सेवकों का पहले न्याय होगा। मैं और आप जितने हम सेवक हैं, चाहे तो बिशप हैं, चाहे मॉडरेटर हैं, लोगों से बहुत आदर पाते हैं, क्या हमें उस दिन यीशु का आदर मिलेगा? ऊपरी सारी चीजों को छोड़ना है। बड़े बड़े चर्चेस की आप प्लेट देखेंगे, काली प्लेट पे बहुत बड़े बड़े नाम लिखे रहते हैं। क्या हमारा नाम उस स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है? आप कहेंगे नेगेटिव कैसे बोल रहे हैं? प्रिय भाइयों, समय आ गया है। अब समय आ गया, हमें ऐसा ही बोलना है, हमें तैयार करना है। जब तक के डॉक्टर घाव को जख्म नहीं करेगा, गंदगी नहीं निकालेगा, वो जख्म ठीक नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह उसी को ठीक करने के लिए आया था, पाप के रोग का इलाज करने आया था। प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग से भटक गए थे उनको रास्ता दिखाने आया था। प्रभु यीशु मसीह बीमारों के लिए आए थे जो कई सालों से बीमार पड़े थे। और अगर तैयार नहीं होंगे तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा। तो हाल क्या होगा? कई लोग सोचते हैं हमारी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री है, कई लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत चमत्कार कर रहे हैं, कई लोग सोचते हैं हमसे बड़ी सेवा कोई कर नहीं रहा। प्रिय भाई बहनों, ये मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन एक सच्चाई बता रहा हूं, बाइबल से बता रहा हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल से बता रहा हूं कि यदि तैयार नहीं हुए न्याय के दिन के लिए तो क्या होगा। सोचिए, मुझे डर लगता है इस वचन से जो आपके सामने मैं बताने वाला हूं। पढ़िए, इस पे अंडरलाइन कीजिए, रोज पढ़िए एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द डे ऑफ जजमेंट, फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज रविवार है, प्रभु का दिन है, जीतने का दिन है। कहिए प्रभु यीशु मसीह, रात को मैं मरा पड़ा था, मैं सो रहा था, मेरे को नहीं पता था, क्योंकि बहुत से लोग रात को सोए थे, आज का दिन नहीं देख सके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, आज मैं जिंदा होकर उठा हूं, तेरे पुनरुत्थान के दिन में जिंदा होकर उठा हूं या उठी हूं। आज मैं चर्च का वचन सुनूंगी या सुनूंगा। मेरे को तैयार कर, मेरे जीवन में से सारी वो बातें निकाल दे कि जब मैं तेरे न्याय के दिन के खड़ूं तो ये वचन सुनने को नहीं मिले, और मेरे को सुनने को मिले कि मेरे बेटे है, मेरी बेटी, तू धन्य है कि तूने अपने आप को तैयार कर लिया, क्या मेरे साथ इस राज में शामिल हो जा, तू मेरे साथ रहे। और अगर हम तैयार नहीं है तो जानते हैं प्रभु क्या कहेगा? चाहे आप कितना ही चमत्कार करते हैं, चाहे आपने कितने ही लोगों को ठीक किया, आपने नहीं किया लेकिन प्रभु के वचन से ठीक किया है, लेकिन अंदर जो हमारा था वो इलाज नहीं हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह, मती 7, मैथ्यू 7 उसका 21 से 23 पढ़ लेना, वहां कहेगा जो प्रभु प्रभु करते हैं वो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। वहां लिखा है, वो कहता है कि मैं तुमसे साफ कह दूंगा कि कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। वो तो कहेंगे हमने चमत्कार किए, हमने भविष्यवाणी की, प्रभु कहता मैं नहीं जानता। प्रिय भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि उन 5 कुंवारियों की तरह आज हम बहुत से सेवक उन 5 कुंवारियों की तरह बाहरी रूप से तो तैयार हैं, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी नहीं है। हम सेवकों का क्या होगा? डर लगता है मुझे। I thank God. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. That wisdom prepare our life to stand before Jesus Christ on the day of judgment. Hallelujah. Praise God. प्रिय भाई बहनों, ये जो वचन आपके पास लाया हूं, बहुत प्रार्थना के साथ एक एक हफ्ते प्रार्थना करता हूं, सुबह उठ करके प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे तेरा वचन दे। हर वचन के लिए कई कई घंटे प्रार्थना करते हैं। हम सेवकों को इस समय, ये समय आ गया है कि हम पहले अपने आप को तैयार करें, पहले हमें अपने आप को तैयार करो। प्रिय भाई बहनों, क्या हुआ?
वो 5 कुंवारियां मैं इस रूप में लेता, वो 5 सेवक ऐसे थे जो कहते थे अरे हम तो चर्च के सेवक हैं, हम तो ये बड़ी बड़ी सेवा है, हमने कई चर्चेस का उद्घाटन किया है, कई रिबन काटे हैं, बहुत कुछ काम किया, देखो हमारा नाम इन प्लेटों में लिखा है, हम तो तैयार है। लेकिन जब द्वार बंद हो गया तो लिखा है कि वो कुंवारियां बाहर रह गई हैं। पढ़ लेना मत्ती मैथ्यू 25:5 कमाल, कहीं हम कुंवारियों के समान तो नहीं है जो बाहरी रूप से तैयार है। आप देखिए आजकल सेवका में क्या हो रहा है, उनके उनके कॉस्ट्यूम देखिए, उसका कंपटीशन हो रहा है उनका, किसका सबसे अच्छा स्टोर है, किसका सबसे अच्छा क्रॉस है। ये सब कुछ बेकार की चीज है प्रिय भाई बहनों, हमें अंदर से तैयार करना। तो बाइबल कहती है कि जब तुम उस दिन को नजदीक आते देखो तो हम इन सारी बातों को अपने जीवन में ले आए। ये जो कुछ प्रिय भाई बहनों मैं आपसे बात बता रहा हूं ना, इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, ना पीएचडी या डॉक्टर इन द बाइबल, मेरे पास ये बड़ी डिग्री नहीं है। मेरे पास एक डिग्री है, आई एम बी ए बॉर्न अगेन बैप्टाइज इन द होली स्पिरिट। हाँ ठीक है, मेरे पिछले दिनों में कुछ हुआ होगा, जाने अनजाने, हर दिन सबसे से होता है, लेकिन डेली आई एम डाइंग। प्रभु के वचन में पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, प्रतिदिन मरता हूं। तो प्रिय भाई बहनों, हमें इस परमेश्वर के वचन को जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वो प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा जो सुबह प्रार्थना में प्रभु देता है उसको लिखता हूं, उसे आपके पास पहुंचा देता हूं। तो इस तीसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह हमसे जो बात कहना चाहता है वो ये है कि जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो तो और करो। प्रभु आपसे कहना चाहता है हमें और करना है। तो पहले विश्वासी लोग क्यों ज्यादा प्रार्थना में इकट्ठे होते थे? आप पढ़िए प्रेरित काम, मैंने पहले भी बताया, अगर आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में रिवाइवल चाहिए तो प्रिय भाई बहनों आपसे प्रार्थना है प्रेरितों का काम बढ़ो। यदि आप अपने परिवार में रिवाइवल चाहते हैं, आत्म जागृति चाहती हैं, तो प्रेरितों काम पढ़िए। आपका घर कैसा है, प्रेरितों 10 पढ़िए। यदि आपको टीम वर्क चाहिए तो प्रेरितों 6 अध्याय पढ़िए। कलीसिया में रिवाइवल लानी है, प्रेरितों 6 अध्याय पढ़िए, उसमें जो लिखा है उसके अनुसार खाने पिलाने की सेवा छोड़ करके, जो कहते हैं कि हम तो सेवा करेंगे, वचन की सेवा तो वही करेंगे, प्रार्थना की सेवा। दुनिया में सबसे बड़ी सेवा प्रार्थना की सेवा है। वचन देने वाले तो बहुत कुछ हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन प्रार्थना करने वाले बहुत कम है। एंड आई थैंक गॉड, गॉड जीसस हैज गिवन मी द मिनिस्ट्री ऑफ प्रेयर। प्रिय भाई बहनों, कमजोर हूं, करता हूं, लेकिन प्रार्थना जरूर करता हूं। तो इस तीसरे भाग में प्रभु यीशु मसीह आपसे पौलुस के द्वारा, इस वचन के द्वारा जो इब्रानी 10:25 में लिखा है कि जो जो तुम उस दिन को आते देखो त्यों त्यों और देख क्या करो, जैसे पहले विश्वासी लोग करते थे। इसके कई कारण थे जो आपने पहले दूसरे भाग में देखोगे। यह यीशु का पवित्र आत्मा कौन से दिन के लिए आपको कह रहा है? बाइबल बताती है वह न्याय का और सत्यानाश का दिन है। चारों सुसमाचार में यीशु ने अपने मुंह से इन सारी बातों को कहा है, और जो कुछ मैं आपसे कह रहा हूं उसको प्रिय भाइयों जरूर करना, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। मत्ती रचित सुसमाचार मैथ्यू 24 चैप्टर, मार्क 13 चैप्टर, लूक 22 चैप्टर, आप पढ़िए। वहां पे सब कुछ यीशु मसीह ने बता दिया है कि जब मैं आऊंगा तुम्हारे बार बार कहने से कि जीसस इज कमिंग सून, जीसस इज कमिंग सून, कुछ नहीं है। ये तो सब जानते हैं, दुनिया के लोग भी जानते हैं, दूसरे विश्वास के लोग भी जानते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में जो यीशु ने कहा है क्या उसके अनुसार हम तैयार हैं? क्या 5 कुंवारियों के समान जो बिल्कुल प्रिपेयर्ड थी, अंदर से तैयार थी, और फिर उन्होंने अपने आप को बाहर से भी तैयार कर दूल्हे के लिए, क्या हम अंदर और बाहर से तैयार हैं? यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा है कि अनुग्रह पर अनुग्रह प्रभु से मिला है। पहला अनुग्रह हमारे बाहरी जीवन के लिए, ये हमारे शरीर के लिए, और दूसरा अनुग्रह हमारी आत्मा के लिए। ये अंदर और बाहर हमारे उस जहाज के समान, जैसे परमेश्वर ने नूह से कहा था, ये दोनों अनुग्रह इस प्रकार से, जैसे नूह से कहा था कि तू जहाज के बाहर और अंदर राल लगा लेना, पिच लगा लेना,
प्रभु का ये पवित्र आत्मा आपको बता रहा, मैंने बताया कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जैसा पवित्र आत्मा कहता है आपको बता देता हूं। अंदर और बाहर से यह अनुग्रह आपको सेव करना चाहता है। पढ़िए इन चारों, इब्रानियों 10:37 में लिखा है, क्योंकि अब बहुत थोड़ा समय रह गया है जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यहां तक तो लोग बहुत कहते हैं, लेकिन उसका अगले का वचन भूल जाते हैं। लिखा है कि यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उनसे प्रसन्न ना होगा। आज कितने जवान लोग हैं जिनको मैं जानता हूं पीछे हट गए हैं। प्रिय भाई बहनों, आज का जवान और हर बच्चा संसार की सारी बातों में गुरु बन चुका है, और अगर उसे कुछ समझाओ तो वो कहते हैं हमें सब कुछ आता है। वास्तव में उनको सब कुछ आता है। उनको वो सारी बातें आती है जो हमें हमारी जवानी के समय में, हमारे समय में हमें कुछ नहीं पता था। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि अब बहुत कम समय रह गया है कि जब वो आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। इस प्रभु के दिन, आज इस रविवार के दिन, इस संडे के दिन, यीशु के जी उठने के दिन, प्रभु आपसे एक बात कहना चाहता है कि हमें इस अंतिम समय के बारे में सोचना है, और जैसा बाइबल कहती है उस न्याय के दिन के लिए हमें तैयार होना है। दूसरा पत्रस 2 पीटर 3:8 में लिखा है, हे प्रभु ये बात तुम से छुपी नहीं है, तुमसे इग्नोर नहीं है, तू सब जानते हो कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 दिन एक दिन के बराबर है। तो कई लोग तो कहते हैं अरे प्रभु अभी कितने बड़े बड़े सेवक चले गए, नलबोंकी चले गए, प्रभु के दास बिलीग्राम चले गए, कहता अभी तक तो आया नहीं, अब क्या आएगा। प्रभु कहता वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कितने लोग समझते हैं, परंतु वो हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर की नया आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ जाता रहेगा, आकाश के तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सारी बातें इसी रीति से पिघलने वाली है, तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। हालेलुया, प्रभु वचन आपसे बात कर रहा है प्रिय भाई बहनों, आपको और हमको कैसा होना चाहिए प्रभु के दिन के लिए। मत कहिए कि प्रभु आने वाला है, दिन बुरे हैं, वो तो सबको पता है, लेकिन आर वी रेडी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, फॉर द डे ऑफ जजमेंट। मैं बार बार सबको कह रहा हूं, इसलिए कि मैं आपको तैयार करना चाहता हूं, अपने आप को भी तैयार कर रहा हूं। इन माई डे टू डे लाइफ आई एम प्रेइंग लॉर्ड जीसस प्रिपेयर मी, मुझे तैयार कर। तो अभी जबकि ये सारी वस्तुएं पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, तुम्हें कैसा सेवक होना चाहिए, मुझे कैसा सेवक होना चाहिए, हमें कैसा सेवक होना चाहिए। पवित्र चाल चलन में, भक्ति में हम कितने घंटे प्रार्थना में बिताते हैं। 12वें वचन में लिखा है, और परमेश्वर उस दिन की बात किस रीति से जोना चाहिए, हमें कैसा वेट करना। एवरी डे वी हैव टू वेट अपॉन द लॉर्ड इन प्रेयर। इसलिए कहता है जो जो तुम उस दिन को आते देखो और अधिक जल्दी क्या करो। उसके लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए जिसके कारण आकाश पिघल जाएगा, आकाश के गण बहुत तिप्त होकर गल जाएंगे। तो ऐसे में बाइबल क्या कहती है, क्या कहती है बाइबल। पहला पत्रस 4:7 में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत हो जाओ। प्रभु आपसे कुछ कह रहा है, इसलिए सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। आप सब कहते हैं अंत होने वाला है। एवरी डे पीपल आर डाइंग विदाउट होप। नाउ दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वी हैव टू प्रे फॉर अवर कंट्री, we have to pray for our church, we have to pray for our pastor, we have to pray for our Christian community। प्रार्थना कीजिए, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमियों की प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो, और प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बुराई मत कीजिए, जरा सी किसी से गलती हो गई पूरी दुनिया में मत फैलाइए। अगर ऐसा करेंगे तो प्रभु यीशु आपके नाम को लिख रहा है कि इसने उसके लिए प्रार्थना तो नहीं की, लेकिन उसके लिए बुराई सब जगह इसकी बदनामी कर दी।
प्रभु तो माफ कर देगा, लेकिन ऐसे लोगों को यीशु माफ नहीं करेगा। प्रिय भाई बहनों, अंत में एक वचन और पढ़ना चाहता हूं, इब्रानी 10:12। समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए। अब हम समय कम रह गया है, इसलिए इस वचन में जो जो तुम उस दिन को नजदीक आते देखो तो और करो। इसलिए वचन कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर सचेत रहो और जितनी हो सकते प्रार्थना करो। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है। आज हमने आराधना की है, गीत गाए हैं, प्रार्थना की है, और निश्चय मानिए कि प्रभु यीशु आपको अपने स्वर्गीय राज के लिए तैयार करना चाहता है। हम सेवकों को तैयार करना चाहता है। नाउ डेज आर वेरी शॉर्ट, जीसस इज कमिंग सून। बाइबल सेज रिडीम द टाइम, द डेज आर इवल। समय को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, ये बुरे दिन चल रहे हैं। आप सोचें कि कोरोना खत्म हो जाएगा? मैंने इसलिए कहा है कि मैथ्यू 24, मार्क 13 एंड लुक 22 चैप्टर पढ़िए, कि वहां लिखा कहता अभी तो और आने वाला है। और पतरस कहता है कि आग पिघलने वाली है, आग आने वाली है। आपको पता है, जिस जगह आप खड़े, यू आर नॉट सेफ। आपने कई वीडियो देखे हैं कि लोग रास्ते पे जा रहे हैं, जमीन फट गई, गारे गिर गई, कुछ कुछ हो रहा है। लोग जा रहे हैं, ऊपर से भूस्खलन हो रहा, पहाड़ के पहाड़ जमीन गिर गए। वी आर नॉट सेफ, बट ओनली one thing, always I say, if you are God's property, you are safe in the hands of the Lord. You are not hopeless if you are hope in Jesus Christ. आइए प्रार्थना करते हैं इस प्रभु के दिन के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह ने आज का दिन हमें दिया है। और मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको आशीष मिली है, अगर आपको आशीष मिली है, तो ये मत कीजिए कि प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बोलिए कि आज मुझे इस वचन के द्वारा आशीष मिली, अब मुझे परमेश्वर यीशु के लिए तैयार होना है, उसके आगमन के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु से अपने लिए आशीष मांगते हैं, कि उसके पास आ जाते हैं। प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। हालेलुया। लेकर सब बोझ गुनाहों का आ जाओ यीशु के चरणों में। यीशु एक प्यार का सागर है, यीशु एक प्यार का सागर है। बात बिगड़े हुए बन जाएगी। आपकी बातें बिगड़ गई हैं, जिस काम में हाथ डालते हो सफल नहीं होता, जीवन से लालच निकाल दीजिए। आज बहुत से लोगों ने लालच के कारण अपने परिवारों को, अपने आप को बर्बाद कर दिया है। काम बिगड़ते जा रहे हैं, जिस बिजनेस में हाथ डालते असफल हो जाते हैं, जो काम करना चाहते हैं वो रुक जाता है। बात बिगड़े हुए बन जाएगी, तेरी मंजिल तुझे मिल जाएगी। वक्त है लौट अब दे नसीब, वक्त है लौट अब दे नसीब। दुख दर्द में जो है करीब, आजा 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 आजा, आजा 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 मसीह के करीब। दुख दर्द में जो है करीब, प्रार्थना के सुनने वाले यीशु, प्रार्थना की चाह हमें तो भर। प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौर हमें तो भर। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए जीवन ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। धन्यवाद यीशु,
इस वचन के लिए, आराधना के लिए पिता, पवित्र आत्मा के लिए जिसने हमारी सहायता की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन भाई बहनों ने आज का वचन सुना है, उनके जीवन से बात कीजिए, वो अपने जीवन को तेरे क्रूस के पास लाके उस बोझ को डाल दे तेरे ऊपर, क्योंकि तूने कहा है मेरे पास आओ, मेरा अपना बोझ मुझ पर डाल दो, अपने पाप का बोझ, अपने कर्जे का बोझ, अपनी बीमारी का बोझ मेरे पास आओ। प्रिय भाई बहनों, इब्रानी 4:12 में लिखा है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि मनुष्य के बीच में, आकाश के नीचे, स्वर्ग के ऊपर और एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु मसीह। जो कुछ आप यीशु के नाम से मांगोगे आपको करेगा। प्रिय भाई बहनों, अपने जीवन को प्रभु को सौंप दीजिए और मेरे पीछे एक प्रार्थना कीजिए छोटी सी। प्रभु यीशु, मैं जैसा भी हूँ तेरे पास आता हूँ या आती हूँ। मेरे कर्जे का बोझ, मेरी बीमारी का बोझ, मेरा दिमाग काम नहीं करता यीशु, मेरे बच्चों की फीस रुक गई है यीशु, मेरे घर में अशांति है यीशु, हम बहुत पीड़ा में से जा रहे हैं, हम अपना दुख किसको बताएं। प्रभु यीशु, ये 6 में लिखा है, जब सबने तुझे छोड़ दिया तो तूने चेलों से क्या तुम भी जाना चाहते हो? पतरस ने कहा, किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, शांति तेरे पास है। प्रभु, मेरे भाई और बहन जब प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना को सुन। वो कह रहे हैं, यीशु मेरे पाप के बोझ को ले ले, मेरे कर्जे के बोझ को ले ले, मेरी बीमारी के बोझ को ले ले। मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरे बच्चे गलत रास्ते पे चल गए, मेरे को बोझ अपने बच्चों का, मेरे बच्चों को उद्धार दे दे, मेरे कलीसिया को उद्धार दे दे। बहुत से पास्टर लोग दिन रात प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन सेवकों के लिए प्रार्थना है, तू उनको आशीष दे। धन्यवाद यीशु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। पिताजी, जितने लोगों ने प्रार्थना की है उन सबको आशीष दीजिए, इनकी कलीसिया को आशीष दीजिए। आज जब ये वचन सुन करके अपने घर जाते हैं या अपने घर में बैठे इसको ऑनलाइन देखते हैं, ये यीशु उनके जीवन में काम कर, ताकि वो कह सके सच में आज हमारी मुलाकात यीशु से हो गई, मैंने नया जीवन पाया। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दिए, आपकी सहायता करे। आने वाले दिनों में, आने वाले संडे को हम फिर एक संदेश के साथ, आत्मा से भरे संदेश के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई में दिए गए संदेश को सुनेंगे, अपने जीवन में लेंगे और प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार होंगे। मैं हमेशा बार बार लोगों से कहना, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द डे ऑफ जजमेंट। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।